नमस्कार। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित आज के बहुभाषी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यह बहुभाषी कवि सम्मेलन विश्व कविता दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है और आज सुबह 10 बजे इस कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र संपन्न हुआ, जिसमें साहित्य अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रशेखर कंबार, उपाध्यक्ष श्री माधव कौशिक और सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव उपस्थित थे। इसके अलावा उस सत्र में कविताएं पढ़ी गई 7 भाषाओं में। उसके बाद दूसरा सत्र 12 बजे संपन्न हुआ, जिसमें 8 भाषाओं में कविताएं पढ़ी गई और उस सत्र की अध्यक्षता प्रसिद्ध बांग्ला कवि श्री सुबोध सरकार ने की। अभी यह इस कार्यक्रम का तीसरा सत्र और अंतिम सत्र हम आयोजित कर रहे हैं और इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं तेलुगु भाषा के प्रतिष्ठित कवि और साहित्य अकादमी में तेलुगु भाषा परामर्श मंडल के संयोजक के शिवा रेड्डी जी। हमारे साथ हैं 7 भाषाओं के कवि, पंजाबी से मोहनजीत जी, राजस्थानी से मनीषा आर्या सोनी जी, संस्कृत से अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, संताली कवि अभी हमारे बीच नहीं पहुंचे हैं, चंद्रमोहन किस्कू जी, वो उपस्थित होंगे। सिंधी से कन्हैयालाल मोटवानी जी, तेलुगु भाषा से बांदला माधव राव जी और उर्दू भाषा से साबिर जी। मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जो भी दर्शक श्रोता हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, उन सबसे अनुरोध होगा कि आप हमारे इस कार्यक्रम के लिंक को फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम का आनंद उठा सके। कार्यक्रम के आरंभ में मैं अनुरोध करूंगा के शिवा रेड्डी सर से कि वे कुछ 2 शब्द बोले और उसके बाद हम फिर कविता पाठ का सिलसिला शुरू करेंगे। श्री के शिवा रेड्डी जी। Devesh, are you able to listen to me? Yeah, sir. Hello? Please. We are meeting on World Poetry Day. Some 7 poets from 7 languages. Any literature, all of you know. Are you able to listen, Devesh? Hello? Are you able to listen? Yes, sir. Yes, sir. Please continue. బానే ఉంది శివారెడ్డి గారు, బానే ఉంది. Hello? Amma. It is the essence of human life, you know, poetry. Are you able to listen to me? Yes, sir. Please continue, sir. Are you able to listen to me? Yes, Sir, sir. వినిపిస్తుంది. శివారెడ్డి సార్ వినిపిస్తుంది. Yes. Let me. I am beginning to say few words, sir. Yes, sir. Please. Please. My view. We are celebrating poetry festival all over the world, perhaps. And as you all know, any literature records the source history of that language, and it records the cultural, the depth of the race also. And it is a Palestinian poet, Darwish said, there is 1,000 poets behind one poet. That means one poet imbibes all the heritage and everything that comes from a long way, from so many times immemorial times, you know. And it is a wonderful thing, you know. Poetry, I hope, song is the first form of the expression, the song. Even immemorial times, when we used to live in forests and caves, we used to sing songs. We used to paint also in the caves. So
A human being is not going to be satisfied with mere eating and sleeping. He wants to satisfy his urge to express in the form of art. Maybe art, maybe poetry, maybe novel, maybe music, whatever it may be, painting, everything, you know. Man is going to be essence, the essence of human being. The essence of human man is, we can see in his poetry. His poetry records his language, the cultural development, and the expansion of the language also. We are going to listen 7 poets. I think we can have a sample of all these 7 languages, 7 different languages, plus different cultural backgrounds and their conflicts and survivals throughout the life, throughout the world also, you know. The best record is the art form, you know. We are going to record, we have such a record from long time, you know. We are reading Shakespeare now, we are reading Milton now, we are reading Kalidas, and we are reading Sri and the great poets, Kedarnath Singh, you know. They have given a heritage which we inherited and which we carry to the future generation. We carry it and give it to the next generation. This culture is going to be, you know, ours is a multilingual, multiracial, multi-regional country. As you all know, but there is a diversity and unity is there in the diversity. But we are going to grasp the inner soul of India through literature. I hope we are going to have some 7 poet sample of their language. They represent their language, and I am very happy to be with you with these few words. Instead of that, I read out 1 or 2 poems to begin with this. One poem I read in Telugu, and then I read it in English. This is in Telugu. కొంచెం స్వేచ్ఛ కావాలి, కొంచెం స్వేచ్ఛ కావాలి, రెక్కలు అల్లార్చటానికి, చిన్నుపడ్డ రెక్కల్ని వెదల్చటానికి, ముక్కుతో ఈకలు సరిదిద్దుకుంటానికి, ఈ కాలు ఇలా ఆ కాలు అలా చాచటానికి, టప్మని ఒక చినుకు నెత్తి మీద పడితే తల పైకెత్తి చెట్ల ఆకులకేసి చూడటానికి, మహా మృదువుగా గాలి వీస్తే ముక్కుపుటాలు పెద్దవి చేసి కళ్ళతో గాలి పీల్చటానికి, కొంచెం స్వేచ్ఛ కావాలి, మనిషిని చెప్పటానికి, పశువుని చెప్పటానికి, కొంచెం స్వేచ్ఛ కావాలి, రాత్రిని చెప్పటానికి, పగలని చెప్పటానికి, కొంచెం స్వేచ్ఛ కావాలి, రెక్కలల్లార్చి గాలిలో ఎగరటానికి, కొంచెం స్వేచ్ఛ కావాలి. This is my language, you must have tasted, and I read the translation of this same poem in English, sir. Need a bit of freedom to flap the wings, to shake off the raindrops on the wings, to set right the feathers with the beak, to stretch out this leg this way and that leg that way, to lift the head up and look at the leaves on the trees when a raindrop falls up on my head, to widen the nostrils and to inhale the air with eyes when we breeze blows over the gently. Need a bit of freedom to call a man, to call an animal. Need a bit of freedom to call a night, to call a day. Need a bit of freedom to flap the wings and to fly in the air. That is the translation of that Koncham Swecha Kavali. And I read 1 or 2 poems. This poem is titled as Bridge. I have been walking on this bridge for the past 50 years.
no change, has just become a bit of fat grown big. Do things to have age? Do things to have age have old age? Carrying on the burden, saying they can't any longer. Do they complain? Do they grieve? Do they look forward to someone relieving them of the burden? Eyes can't see. The back is bent. For the past 50 years, is the bridge carrying me, or am I carrying the bridge? Lal salams to the bridge that has collapsed, even though the back is bent. That is one another simple poem. The mud. Are you able to listen? Yes. Mud has no right to die. Mud has no right to die. It is damned to live. Mud that knows the beauty of the labor has no right to become dumb, has no right to remain silent. Mud that makes fields blossom into canals, a plough into a small field bank, has no right to reject men. Mud that waters the world with cupped hands has no freedom to say it is not water. The earth that rises and sustains the entire animal kingdom, the tree universe, the living and non-living things, has the right only to infuse life, has no right to take life. I think that is enough. Those 2-3 poems I read, and then I will go to in serial order. I will ask Mohanjit to read out his poems. Hello? Hello? Yes, sir, please. Devesh, I think I read 3 poems, that is enough. Okay, sir. You call out other poets. Mohanjit Punjabi. Okay. बहुत बहुत धन्यवाद शिवा रेड्डी सर। और अब मैं पंजाबी के कवि मोहनजीत जी को आमंत्रित कर रहा हूं। मोहनजीत जी कवि, अनुवादक और आलोचक हैं। आपने पटकथाएं भी लिखी हैं दूरदर्शन के लिए, डॉक्यूमेंट्री की, और आपके 11 कविता संग्रह प्रकाशित हैं, दर्जन भर अनुवाद की पुस्तकें हैं। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद रचना समग्र पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार सम्मानों से विभूषित किया गया है। आप पंजाबी के भाषा के रीडर के रूप में जो है सेवानिवृत्त हुए हैं। तो प्रस्तुत हैं अपनी कविताओं के साथ श्री मोहनजीत जी। जी मोहनजीत जी। अपनी भाषा में सुनाऊंगा, पंजाबी में। जी जी सुनाइए। और उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन सुनाऊंगा। जी मैंने टाइम देख लिया है, तो बिल्कुल अपना उतना ही टाइम लूंगा जितना आपने कहा है। जी ठीक है। तो कविता का नाम है माँ। मैं उस मिट्टी तो गया हाँ जिस चों माँ लोक गीत गाउंदी सी। हर नज़म लिखण बाद सोचदा की लिखिया है। माँ किथे इदा सोचदी होएगी। गीत माँ दे कोटियां नू छो के फुल बनदे। मत्थे नू छोंदे सवेर हुंदी। दुध भरियां छातियां नू छोंदे चंद चढ़दा। माँ नहाउंदी तां शब्द रुण झुण लाउंदे। माँ नहाउंदी
पता नहीं गीत का कितना हिस्सा पहला सी कितना मां का, पता नहीं गीत का कितना हिस्सा पहला सी कितना मां का। मां नहाउंदी तां शब्द रुन चुन लाउंदे, तुरदी तां लय बनदी। मां नूं किन्ने क साजां दा जे ना आउंदे होणगे, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਸਰੀ ਜਾਂ ਲਗੋਜ਼ਾ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਰਬਾਬ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ। ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਖੋਜਣ ਸੀ, ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਸੌ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਠਦੀ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਧੋਂਦੀ। ਪਿੰਨੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਦੇਸੀ ਪਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਮਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ लगता रब जिंदा है। मैं इसकी अब आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन सुनाता हूँ। मदर, born I was out of the soil from where mother picked folk songs. Born I was out of the soil from where mother picked folk songs. Having read every poem, I think, how could mother even think like this? Songs touching her fingers become flowers. When touched forehead, the day dawned, and when touched her milk-filled bosom, moon rose. How much the song was there before? How much the song was there before? How much the mother wove, I don't know. The words tinkled when mother bathed. Her gait gave her rhythm. Her gait gave them rhythm. Names of how many musical instruments mother knew. Names of how many musical instruments mother knew. Not more than a flute or a flageolet. Seeing Guru Nanak, the image, she could even name Rabab. But the instrument that played with the lullaby, and what instrument was made from the sound of a sigh, mother knew not. How could mother be a searcher? How could mother be a searcher while spinning the wheel slept away and ground grains when she woke? How could mother know about twilight? How could mother know about twilight? With stars she waited emigrant husband. I too, who consider himself a scholar, know only that while mother breathes, God exists. I too consider himself who consider himself a scholar, know only that while mother breathes, God exists. I was born out of the soil from where mother picked folk songs. Thank you. Thank you. Good. बहुत बहुत धन्यवाद मोहनजीत जी। और मित्रों, अब मैं राजस्थानी की कवयित्री मनीषा आर्य सोनी जी को आमंत्रित कर रहा हूं कविताएं पढ़ने के लिए। आपकी रुचि उपन्यास लिखने में भी है, आपके उपन्यास और कविता संग्रह प्रकाशित है।
आप आकाशवाणी और अन्य अनेक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। रंग कर्म में भी आपकी रुचि है, नाटक से आप जुड़ी हुई हैं। श्रीमती मनीषा आर्य सोनी जी। आप सगळ्यांना कविता दिवस की मोकली शुभकामनाएं। आप सभी को कविता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। राजस्थानी री मारी पहली कविता आप सामी राखूं और बीरे पछे उमरो उल्थो आप सामी राखूंगा। किणदिस जावे पंखेड़ा, किणदिस जावे पंखेड़ा, कुण डगर मुंडेर बतावे है। किणदिस जावे पंखेड़ा, कुण डगर मुंडेर बतावे है। आप भरोसे पंख भरू के आभे ने बतलावे है। आप भरोसे पंख भरू के आभे ने बतलावे है। जठर अगनरी तेज आंच पर, जठर अगनरी तेज आंच पर मधुरी मधुरी भूख सिखे। जठर अगनरी तेज आंच पर मधुरी मधुरी भूख सिखे। डगर अजान अफू का रूह है, लिया चोच में तिरस फिरे। गरुड़ थार अर नुगरो आभो, किणरे आडो आवे है। करम जतनरी जुगल बंदिसु, तड़ बैठ्यो जड़ तिरम तरे। किणदिस जावे पंखिड़ा, कुण डगर मुडेर बतावे है। आप भरोसे पंख भरू के आभे ने बतलावे है। सोच लारली कई करनी आगे री परवाह। दो दिन रो खेल सासरो, करम भरोसे खेल तुझा। आज है थारे हाथा में, क्यों आज न रोए गमावे है। जीते उड़ारा ढोल गुरावे और इतिहास बतावे है। किणदिस जावे पंखिड़ा, कुण डगर मुंडेर बतावे है। आप भरोसे पंख भरू के आभे ने बतलावे है। इसका हिंदी अनुवाद आपके समक्ष रखती हूँ। कौन दिशा को उड़ा पखेरू, कौन दिशा को उड़ा पखेरू, कौन दिशा बतलाता है। कौन दिशा को उड़ा पखेरू, कौन दिशा बतलाता है। पंखों पर विश्वास है जिसको, नभ से वो बतियाता है। पंखों पर विश्वास है जिसको, नभ से वो बतियाता है। जठर अगन की तेज आंच पर मध्यम मध्यम भूख सिके। जठर अगन की तेज आंच पर मध्यम मध्यम भूख सिके। अनजान डगर नर्म पंख हैं, कैसे भूख से जंग लड़े। निष्ठुर थार फैला वितान, बाधा नहीं बन पाता है। कर्म पर विश्वास हो तो तल का जल ऊपर आता है। कर्म पर विश्वास हो तो तल का जल ऊपर आता है। पंखों पर विश्वास है जिसको, नभ से वो बतियाता है। पंखों पर विश्वास है जिसको, नभ से वो बतियाता है। सोच व्यर्थ है मृत अतीत का, सोच व्यर्थ है मृत अतीत का। व्यर्थ भविष्य का चिंतन। दो दिनों का खेल सांस का, कर्म गति का कर मंथन। 2 दिनों का खेल सांस का, कर्म गति का कर मंथन। आज है तेरी झोली में, आज है तेरी झोली में, क्यों रुदन में समय गंवाता है। जीतने वाला बना सिकंदर, ये इतिहास बताता है। जीतने वाला बना सिकंदर, ये इतिहास बताता है। पंखों पर विश्वास है जिसको, नभ से वो बतियाता है। प्रीत के मीठे गीत गाओ, कर्कश वाणी मत बोलो। प्रीत के मीठे गीत गाओ, कर्कश वाणी मत बोलो। पड़े कलेजे वज्र सरीखी, पहले तोलो फिर बोलो। प्रेम जल से करे जो सिंचन, प्रेम जल से करे जो सिंचन। मनबोध वही मनाता है। मन के भोलेपन की रक्षा, खुद भगवान करने आता है। पंखों पर विश्वास है जिसको, नभ से वो बतियाता है। मेरी दूसरी कविता है। सूत्या नाही जागे भाग, सूत्या नाही जागे भाग, खोल आँख्यां और देख उजास। सूत्या नाही जागे भाग, आँखें खोल और देख उजास। नीची आँख न दीसे लो, खुलो गगन और दिवस उजास। नीची आँख न दीसे लो, खुलो गगन न दिवस उजास। ऊर मारो कलश लेर कृत्या थारे द्वारे खड़ी। मान राखे ना हटारा, ए भाग में किणरे पड़ी। अवसर चूकिया रह जावेली, हाथा माए वेदना।
और कठे नदी सैली। रियल सूतिया नाही जागे भाग हो लाख्या अरबे हो जा। इसका हिंदी अनुवाद आपके समक्ष रखती हूँ। कैसे जागे भाग्य बंधु, कैसे जागे भाग्य बंधु, सुप्त हो जब चेतना। कैसे जागे भाग्य बंधु, सुप्त हो जब चेतना, अलसाई आंखों में कैसी स्वप्न की संरचना। ऊर्जा का कलश लेकर रश्मियां द्वारे खड़ी, ऊर्जा का कलश लेकर रश्मियां द्वारे खड़ी। मान रख इन आहटों का भाग्य में किसके पड़ी, मान रख इन आहटों का भाग्य में किसके पड़ी। बीत जाए अवसर फिर रह जाती है वेदना, बीते हाथों रह जाती रेखाओं की विडंबना, बीते हाथों रह जाती रेखाओं की विडंबना। कैसे जागे भाग्य बंधु, सुप्त हो जब चेतना। औंधे मुंह पड़े रहने से श्रेष्ठ कहीं मृत्यु वरण, औंधे मुंह पड़े रहने से श्रेष्ठ कहीं मृत्यु वरण। मार्ग प्रशस्त होते हैं उनके जिनके बढ़ जाते चरण, मार्ग प्रशस्त होते हैं उनके जिनके बढ़ जाते चरण। निर्विवाद है कर्म पूजन, निर्विवाद है कर्म पूजन और उसकी साधना। प्रदीप्त कर विश्वास मन में हो सफल आराधना। कैसे जागे भाग्य बंधु, सुप्त हो जब चेतना। दो छोटी छोटी मेरी और रचनाएं आपके समझ रखती हूँ। एकांत ना हो तो गुण मनु संसार ने घड़तो, एकांत ना हो तो गुण मनु संसार ने घड़तो। एकांत ना हो तो गुण बैठ रिचावा ने रचतो। इसका हिंदी अनुवाद में आपको सुना देती हूँ कि तन्हाई गरना होती तो कौन मनु नवजीवन रचता, तन्हाई गरना होती तो कौन मनु जब नवजीवन रचता। जीवन की विभीषिका को कैसे नव सृजन से रचता। रची नहीं जाती ऋचाएं, रची नहीं जाती ऋचाएं, अनावश्यक कोलाहल में किस तलाश में जाते शिव कैलाश के सन्नाटों में। तन्हा ही देखा जाता है बदलाव का चेतन सपना, तन्हा ही देखा जाता है बदलाव का चेतन सपना। तन्हाई में लगाई जाती अपनों परायों की गणना। शाश्वत सन्नाटों की वीणा में जीवन की झंकार है, शाश्वत सन्नाटों की वीणा में जीवन की झंकार है। चिर सनातन तन्हाई शेष खंडित संकार है, चिर सनातन तन्हाई शेष खंडित संकार है। और अपनी अंतिम रचना राजस्थानी में कि बदी पखरी इन मगसी मगसी राता माय, बदी पखरी इन मगसी मगसी राता माय। अंधारो गटके जद चांद ने, अंधारो गटके जद चांद ने। बाबा हे याद आओ, बाबा हे याद आओ। थक्योड़ा आपरा घर खाने लूटनो, थक्या आपरा पग और घर खानी उगता। और याद आओ तो तवे पर सिकतो गरम गरम चांद और उनमें धीरे धीरे अरोगना। इसका हिंदी अनुवाद करके मैं अपना समय विराम करूंगी कि कृष्ण पक्ष की इन बुझती बुझती धीमी मध्यम रातों में, कृष्ण पक्ष की धीमी धीमी बुझती मंद रातों में अंधेरा निगलता है धीरे धीरे जब चांद को, अंधेरा निगलता है धीरे धीरे जब चांद को। तब अचानक थके हुए बाबा का घर लौटना याद आता है, तब थके हुए बाबा का घर लौटना याद आता है। और तवे पर सिकते गर्म चांद को धीरे धीरे अरोगना याद आता है। सारी उम्र एक पूर्णिमा की रात के लिए किश्तें भरते रहे और कृष्ण पक्ष की अधपकी अध चली रातें निकलते रहे। और जब पूर्णिमा की रात आई, और जब पूर्णिमा की रात आई तो चटक चांदनी की चकाचौंध से घबराकर आंखें मीच गई। और जब चांदनी की रात आई तो चटक चांदनी की चकाचौंध से घबराकर आंखें मीच गई। कृष्ण मध्यम रातें याद आता है बाबा का घर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।
बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा आर्या सोनी जी। और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं संस्कृत के प्रतिष्ठित कवि विद्वान अभिराज राजेंद्र मिश्र जी को। आप भोजपुरी में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं और आपकी लगभग 180 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान आदि अनेक पुरस्कारों सहित भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अलंकरण से विभूषित किया गया है। आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति भी रहे हैं और विभिन्न संस्थाओं से दायित्वपूर्ण पदों पर जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी अपनी संस्कृत कविता के साथ। Dear friends, I will present here two small poems. The first poem is based on my own country and its title is Mama Bharatam, My India. In this poetry, the poet describes the divine rivers and lofty mountains of India, which have been the center of pedants of rishis and munis. He talks about the Indian culture, Indian literature, which has been generated from the Vedas. He talks about the Indian religion, Indian society, Indian culture, and Indian concept of global fraternity and universal culture. So in this poetry, the whole India is reflected in its own way. Now I present the poem. Bhutal shiro ratnam nukim, Bhutal shiro ratnam nukim, Mama Bharatam, Mama Bharatam. Bhutal shiro ratnam nukim, Mama Bharatam, Mama Bharatam. Devairapi prathitam nukim, Mama Bharatam, Mama Bharatam. Kwanu Narmada Godavari, Kaveri ka Krishna Nagha. Kwanu Narmada Godavari, Kaveri ka Krishna Nagha. Surasaridaho prapunati kim, Mama Bharatam, Mama Bharatam. Bhutal shiro ratnam nukim, Mama Bharatam, Mama Bharatam. Vedascha Vedanga Same, Vedascha Vedanga Same, Smritayah Purana Samuchaya, Sinchanti Vaksudhayanukim, Mama Bharatam, Mama Bharatam. Sinchanti Vaksudhayanakum, Mama Bharatam, Mama Bharatam. The poet says that if anybody asks you, వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు. చాలు సాహిత్య అకాడమీ అంటే చాలు, ఈయన భారతీయ సాహిత్య అకాడమీ అనక్కర్లేదు అన్నాడు. the poet says, if anybody asks your introduction, you may tell him, I am an Indian. First of all, you tell him that you are Indian. And after that, you are a Punjabi, a Gujarati, a Maharashtri, and a Bihari, etc. Mama Gurjara Sam Kerala, Mama Gurjara Sam Kerala,
बंगांग पंचनदोत्कला लघुतामिमां त्यक्त्वा कथय मम भारतम मम भारतम। लघुतामिमां त्यक्त्वा कथय मम भारतम मम भारतम। औदीच्य दक्षिणयोः कथा द्रविणार्य संकलनावृथा दुर्मतिमिमामपहाय वद मम भारतम मम भारतम मम भारतम मम भारतम। And ultimately the poet says that there is no difference between Brihadishwar of Tamil and the Kashi Vishwanath of Kashi. Brihadishwarah Kashishwarah Someshwaro Rameshwarah। Brihadishwarah Kashishwarah Someshwaro Rameshwarah। विलसन्ति यत्र तदेव भो मम भारतम मम भारतम। विलसन्ति यत्र तदेव भो मम भारतम मम भारतम। भूतल शिरो रत्नम नु किम मम भारतम मम भारतम। The second poem of mine is a Sanskrit ghazal. You know very well that almost in all the languages of India, now the ghazal has become much popular. So in Sanskrit also, this technique is very popular nowadays. I am presenting a small poem that is, the title is Shanai Shanai. That means slowly, slowly. You do every work in your life slowly. Don't be hasty. Don't make haste. The poet says that, my dear friend, the love is just like a little plant, but don't try to make this plant a huge tree within a night, because it will take time. It's very good that you are celebrating your Holy Kotsav, but be cautious. Be cautious. Otherwise, even a little part of your Holika fire will burn the whole village of daily basis. Dear friend, you are on way. You are just completing your journey, but you know that a lofty mountain is just in the front of your way, and the deep ravines are your left and right. Therefore, be cautious while you are going ahead. This way, the tender feelings of life are presented here in this little poem. Kindly, you may know very easily, because my poem and my language is very simple, and it's not very difficult. प्रीतिक्षुपं विवर्धय बंधो शनै शनै। प्रीतिक्षिपं विवर्धय बंधो शनै शनै। समाप्त हो गया क्या? नहीं चल रहा। प्रीतिक्षुपं विवर्धय बंधो शनै शनै। सुहृदां मनोनुरंजय बंधो शनै शनै। सुहृदां मनोनुरंजय बंधो शनै शनै। प्रीतिक्षुपं विवर्धय बंधो शनै शनै। परितोऽपि पामराणां तृणशालिका इमा। परितोऽपि पामराणां तृणशालिका इमा। होलानलं समिन्धय बंधो शनै शनै। होलानलं समिन्धय बंधो शनै शनै। प्रीतिक्षुपं विवर्धय बंधो शनै शनै। अभितो गभीर नद्यौ
गिरि श्रृंखला पुरः अभी तो गभीर नद्यौ गिरि श्रृंखला पुरः यात्रामिमां समापय बंधो शनै शनै यात्रामिमां समापय बंधो शनै शनै त्वामपि न कौशिकोऽसौ चाण्डालतां नये त्वामपि न कौशिकोऽसौ चाण्डालतां नये सत्यं विचिन्त्य भाषय बंधो शनै शनै सत्यं विचिन्त्य भाषय बंधो शनै शनै कीर्ति प्रयाच्यते नो the order is not demanded, it is given by the society. कीर्ति प्रयाच्यते नो सदभि प्रदीयते कीर्ति प्रयाच्यते नो सदभि प्रदीयते आशीर्वचोभिरूर्जय बंधो शनै शनै आशीर्वचोभिरूर्जय बंधो शमै शनै श्रुत्वाभिराज गीतिं सुरवाचि सादरं श्रुत्वाभिराज गीतिं सुरवाचि सादरं श्रद्धां दृढ़ां समञ्जय बंधो शनै शनै भक्तिं दृढ़ां समञ्जय बंधो शनै शनै सुहृदां मनोनुरञ्जय बंधो शनै शनै सुहृदां मनोनुरञ्जय बंधो शनै शनै प्रीतिक्षुपं विवर्धय बंधो शनै शनै। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी। और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं संताली भाषा के कवि श्री चंद्र मोहन किस्कू जी को। आप हिंदी में भी लिखते हैं, कहानियां भी लिखते हैं, आपकी बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित हैं। आप संताली और हिंदी में परस्पर अनुवाद का काम भी करते हैं। आपको अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त है, जिनमें साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार भी शामिल है। श्री चंद्र मोहन किस्कू जी, किस्कू जी आप अनम्यूट कर लीजिए जी, अब सुनाइए जी। सबको जोहार। मैं पहले मैं अपनी मातृभाषा में कविता सुना रहा हूँ। कविता का शीर्षक है नगर। नगर रे बाय अमनोआ ओसार सगै रेया हरियर बद। नगर रे दो अमनोआ उचित सगै रेया गमला रे बाहा। नगर रे दो बाय हुआ सोहराय सकरात और बाहा पाराब। नगर रे दो हुआ पाराब मारांग मारांग होर्डिंग रे कांत रे चिटो शॉपिंग मॉल रे डिस्काउंट एमो ढारू रे। नगर रे दो होड़ को बाको कुपली आ बुगी बाड़ी उनको दो एकेन निजरा लाक्ति को सदरा। नगर रे शर्मा जड़ी अड़गोना मेनखान बाय अड़गोना सान बोंगा। गिद्रे को बांग को लहोदोआ खुशिया रस्कते। नगर रे नुलडर खना बाय सेरेन्या कुइली। नगर रे बाय अंजमोआ गुती कड़वा त्रियो साडे कड़मी कुड़िया लिठुर सेरेन्या अडांग। नगर रे बाय अंजमोआ माझी अखड़ा रे रू तालते कोड़ा कुड़ी कोआ एनेज आर सेरेन्य। नगर रे दो खाली रेडियो और संगी नेलनम रे को सेरेन्या रुचिकिया को। नगर रे ओसार डहार और नन्हा गुजली करे ताड़ाम ओक्तो एकालेम थाली गया ओंडेना कुचित मोने रे हरियर लसट रे। अब मैं हिंदी अनुवाद सुना रहा हूँ। नगर। नगर में उगते नहीं चोड़ी रिश्ते वाली हरी गमले की। नगर में होता नहीं सोहराय सकरात और बहा पर्व। नगर में होते हैं पर्व बड़े बड़े होर्डिंग में, दीवार पर चिपकी शॉपिंग मॉल की डिस्काउंट देने वाली विज्ञापन पर। नगर में लोग पूछते नहीं हालचाल,
वे अपनी जरूरत ही प्रकट करते हैं। नगर में बारिश होती है पर आता नहीं सावन, बच्चे भीगते नहीं है खुशी से। नगर में आम की डाली से गाती नहीं कोयल, नगर में न सुनाई देती बांसुरी की धुन, न औरतों की गीत की बोल नगर में होते नहीं। माझी के अखाड़ा में नगाड़ा और मंदिर की थाप पर युवक युवतियों की नाच। नगर में केवल रेडियो और टेलीविजन पर ही गाते हैं लोग। नगर की चौड़ी सड़कें और तंग गलियों में टहलते समय फंस सकते हो वहां की तंग दिल की काली कीचड़ में। বলছি এটা একটা দিলে হয়ে যাবে। दूसरी कविता मेरी माँ की कविता। आज दोपहर मेरी माँ मन में ठान लिया लिखेगी कविता। कल आज और कल की बातें बहुत सोचकर उन्हें शब्दों में पिरोने चाहा। रचना चाह कविता इतने पर दस्तक हुई दरवाजे पर। खोलकर देखा तो पिताजी को खड़े पाया। उन्हें ऐनक नहीं मिल रहा है, आंकड़े जाने की जल्दी है। प्यारी बहना को पुस्तक नहीं मिल रही है, बोलने जाने की जल्दी है। और मेरी बेटी तो अपने छोटे छोटे कदमों से चलकर अपने दादी के गले लग जाती है। मेरी माँ की सोच शब्दों से पक्का बनाना, छंद अलंकार को ध्यान में रखना सब भूल जाती है। और उसकी कविता मेरी बेटी के चेहरे पर हो जाती है। तीसरी कविता पेट की आग। दो पत्थरों की टक्कर से या दो डाली के घर्षण से आग तो निकलेगा ही, पर मनुष्यों के खाली पेट पर भी आग जलता है। इससे सबका नुकसान होता नहीं है, पर धनवान का अट्टालिका ध्वस्त हो जाता है। इसलिए कह रहा हूं, अरे ओ नरम बिछवान में सोने वाले, भरपेट खाकर मिट्टी ढकरने वाले, तुम्हारे पिटाई से पीठ की चमड़ी उखड़ गई है, नोचने से मेरा सर गंजा हो गया है। होशियार, क्योंकि अब मेरा पेट में आग जल रहा है। सबको जोहार, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसको जी। किसको जी? जी 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 आप दूसरी कविता फिर से सुनाए, डिस्टर्ब हो गया था मुझे लगता है। अच्छा ठीक। दूसरे नंबर की कविता आप फिर से सुनाए, अच्छा रहेगा। एटलीस्ट हिंदी अनुवाद सुनाए। अच्छा मेरी माँ की कविता। आज दोपहर मेरी माँ मन में ठान लिया लिखेगी कविता। कल आज और कल की बातें बहुत सोचकर उन्हें शब्दों में पिरोना चाहा। रचना चाहा कविता इतने पर दस्तक हुआ दरवाजे पर। खोलकर देखा तो पिताजी को खड़े पाया। उन्हें ऐनक नहीं मिल रहा है, अखड़ा जाने की जल्दी है। प्यारी बहना को पुस्तक नहीं मिल रही है, कॉलेज जाने की जल्दी है। और मेरी बेटी तो अपने छोटी छोटी कदमों से चलकर अपने दादी की गले लग जाती है। मेरी माँ की सोच शब्दों से वाक्य बनाना, छंद अलंकार को ध्यान में रखना सब भूल जाती है। और उसकी कविता मेरी बेटी के चेहरे पर हो जाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमोहन किसको जी। और मित्रों अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं
सिंधी भाषा के कवि कन्हैयालाल जी को भारत सरकार के, और सिंधी में आपका एक गजल संग्रह प्रकाशित है, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। कन्हैयालाल मोटवानी जी। सभी को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है सर? आ रही है। जी विश्व जी, कविता बोलिए। दिवस सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं अपनी सिंधी भाषा में पहले कविता प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद हिंदी में उसका अनुवाद प्रस्तुत करूंगा। मेरी कुछ गजल प्रस्तुत है। पहली गजल है, कुछ नजर दिसंदी रही, कुछ नजर दिसंदी रही, सोच कुछ उड़ंदी रही। कुछ नजर दिसंदी रही, सोच कुछ उड़ंदी रही। शेर पेश है, मां हली थकजी पिस, मां हली थकजी पिस, आस पर रुकंदी रही। मां हली थकजी पिस, आस पर रुकंदी रही। कुछ नजर दिसंदी रही, सोच कुछ उड़ंदी रही। चाह खे मंजिल मिले, चाह खे मंजिल मिले, ख्वाब दिल पसंदी रही। चाह खे मंजिल मिले, ख्वाब दिल पसंदी रही। कुछ नजर दिसंदी रही, सोच कुछ उड़ंदी रही। कोन रड़ जो थियो असर, कोन रड़ जो थियो असर, चुप मगर चुभंदी रही। कोन रड़ जो थियो असर, चुप मगर चुभंदी रही। कुछ नजर दिसंदी रही, सोच कुछ उड़ंदी रही। साल वधंदा ई रहा, साल वधंदा ई रहा, उम्र पर खुटंदी रही। साल वधंदा ई रहा, उम्र पर खुटंदी रही। कुछ नजर दिसंदी रही, सोच कुछ उड़ंदी रही। छा जगत मां तो वटियो, छा जगत मां तो वठियो, जिंदगी पुछंदी रही। छा जगत मां तो वटियो, जिंदगी पुछंदी रही। कुछ नजर दिसंदी रही, सोच कुछ उड़ंदी रही। मक्ता पेश है, दुख रधो मांदा हो जो, दुख रधो मांदा हो जो, सो खुशी गहंदी रही। दुख रधो मांदा हो जो, सो खुशी गहंदी रही। कुछ नजर दिसंदी रही, सोच कुछ उड़ंदी रही। अब मैं इसका हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका हिंदी अनुवाद मेरे उस्ताद और सिंधी के वरिष्ठ साहित्यकार श्री खीमन यू मुलानी द्वारा किया गया है। कुछ नजर तकती रही, कुछ नजर तकती रही, सोच कुछ बुनती रही। कुछ नजर तकती रही, सोच कुछ बुनती रही। शेर पेश है, थक गया मैं दौड़कर, थक गया मैं दौड़कर, आस पर भगती रही। थक गया मैं दौड़कर, आस पर भगती रही। कुछ नजर तकती रही, सोच कुछ सुनती रही। चाह को मंजिल मिली, चाह को मंजिल मिली, ख्वाब दिल गढ़ती रही। चाह को मंजिल मिली, ख्वाब दिल गढ़ती रही। कुछ नजर तकती रही, सोच कुछ बुनती रही। चीख का न हुआ असर, चीख का न हुआ असर, चुप मगर खलती रही। चीख का न हुआ असर, चुप मगर खलती रही। कुछ नजर तकती रही, सोच कुछ बुनती रही। बरस बढ़ते ही रहे, बरस बढ़ते ही रहे, आयु मगर
घटती रही, बरस बढ़ते ही रहे, आयु मगर घटती रही, कुछ नजर तकती रही, सोच कुछ बुनती रही। क्या जगत ने है दिया, क्या जगत ने है दिया, जिंदगी कहती रही। क्या जगत ने है दिया, जिंदगी कहती रही, कुछ नजर तकती रही, सोच कुछ बुनती रही। दुख पकाता जो रहा, दुख पकाता जो रहा, वो खुशी खाती रही। दुख पकाता जो रहा, वो खुशी खाती रही, कुछ नजर तकती रही, सोच कुछ बुनती रही। मेरा दूसरा गजल पेश है। तुंहिंजा नैणन में ख्वाब हुआ, तुंहिंजा नैणन में ख्वाब हुआ, जण दिल में टिड़ियल गुलाब हुआ। तुंहिंजा नैणन में ख्वाब हुआ, जण दिल में टिड़ियल गुलाब हुआ। व्या खुशीअ में से सभु विसरी, व्या खुशीअ में से सभु विसरी, करणा जेके बि हिसाब हुआ। व्या खुशीअ में से सभु विसरी, करणा जेके बि हिसाब हुआ। तुंहिंजा नैणन में ख्वाब हुआ, ॼण दिल में टिड़ियल गुलाब हुआ। खोले पंहिंजो मुंहुं अंदर रखियो, खोले पंहिंजो मुंहुं अंदर रखियो, तो कया अञा बि हिजाब हुआ। खोले पंहिंजो मुंहुं अंदर रखियो, तो कया अञा बि हिजाब हुआ। तुंहिंजा नैणन में ख्वाब हुआ, ॼण दिल में टिड़ियल गुलाब हुआ। खणी सवाल अचन मुसीबतूं, खणी सवाल अचन मुसीबतूं, पर हौसले ॾिना जवाब हुआ। खणी सवाल अचन मुसीबतूं, पर हौसले ॾिना जवाब हुआ। तुंहिंजा नैणन में ख्वाब हुआ, ॼण दिल में टिड़ियल गुलाब हुआ। चई विए तूं ॻाल्हि त लेकिन, चई विए तूं ॻाल्हि त लेकिन, मतलब जा चढ़ियल नकाब हुआ। चई विए तूं ॻाल्हि त लेकिन, मतलब जा चढ़ियल नकाब हुआ। तुंहिंजा नैणन में ख्वाब हुआ, ॼण दिल में टिड़ियल गुलाब हुआ। नसीहतुनि जा वाका अॼुकल्ह, नसीहतुनि जा वाका अॼुकल्ह, ॼण रिढुनि अॻियां त रबाब हुआ। नसीहतुनि जा वाका अॼुकल्ह, ॼण रिढुनि अॻियां त रबाब हुआ। तुंहिंजा नैणन में ख्वाब हुआ, ॼण दिल में टिड़ियल गुलाब हुआ। मक्ता पेश है। हक़ जी ॻाल्हि न कर तूं मांदा, हक़ जी ॻाल्हि न कर तूं मांदा, तो पढ़िया रुगो त किताब हुआ। हक़ जी ॻाल्हि न कर तूं मांदा, तो पढ़िया रुगो त किताब हुआ। तुंहिंजा नैणन में ख्वाब हुआ, ॼण दिल में टिड़ियल गुलाब हुआ। इसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। नैनों में तेरे ही ख्वाब थे, नैनों में तेरे ही ख्वाब थे, दिल में मानो खिले गुलाब थे। नैनों में तेरे ही ख्वाब थे, दिल में मानो खिले गुलाब थे। भूल गया मैं खुशी में सब कुछ, भूल गया मैं खुशी में सब कुछ, करने जो तुमसे हिसाब थे। भूल गया मैं खुशी में सब कुछ, करने जो तुमसे हिसाब थे। नैनों में तेरे ही ख्वाब थे, दिल में मानो खिले गुलाब थे। खोल रखा था मैंने तो दिल, खोल रखा था मैंने तो दिल, तेरे तो अब तक हिजाब थे। खोल रखा था मैंने तो दिल, तेरे तो अब तक हिजाब थे। नैनों में तेरे ही ख्वाब थे, दिल में मानो खिले
गुलाब थे। ले आई जो सवाल आफत, ले आई जो सवाल आफत, दिए हिम्मत नहीं जवाब थे, दिए हिम्मत नहीं जवाब थे। नैनों में तेरे ही ख्वाब थे, दिल में मानो खिले गुलाब थे। बोल गए तुम बातें लेकिन, बोल गए तुम बातें लेकिन, उन पर स्वार्थ के नकाब थे। बोल गए तुम बातें लेकिन, उन पर स्वार्थ के नकाब थे। नैनों में तेरे ही ख्वाब थे, दिल में मानो खिले गुलाब थे। उपदेशों की ये चिल्लाहटें, उपदेशों की ये चिल्लाहटें, बहरों के सामने रबाब थे। उपदेशों की ये चिल्लाहटें, बहरों के सामने रबाब थे। नैनों में तेरे ही ख्वाब थे, दिल में मानो खिले गुलाब थे। सच की बात न कर तू मांदा, सच की बात न कर तू मांदा, सिर्फ पढ़े तुमने किताब थे। सच की बात न कर तू मांदा, सिर्फ पढ़े तुमने किताब थे। नैनों में तेरे ही ख्वाब थे, दिल में मानो खिले गुलाब थे। एक और गजल है। निंद्र दिए थी सुहिणा सुपना, निंद्र दिए थी सुहिणा सुपना, जागुत कोरी ना है कल्पना। निंद्र दिए थी सुहिणा सुपना, जागुत कोरी ना है कल्पना। थधी हवा लाइ निकतुस घर मां, थधी हवा लाइ निकतुस घर मां, टांडा टांडा हुआ सब रस्ता। थधी हवा लाइ निकतुस घर मां, टांडा टांडा हुआ सब रस्ता। निंड दिए थी सुहिणा सुपना, जागुत कोरी ना है कल्पना। पीर घरनि जा चुल्ह जा मार्ग, पीर घरनि जा चुल्ह जा मार्ग, करण वञूं था ॿाहिरि सजदा। पीर घरनि जा चुल्ह जा मार्ग, करण वञूं था ॿाहिरि सजदा। निंड दिए थी सुहिणा सपना, जागुत कोरी ना है कल्पना। सूर अकेला सही वञूं पर, सूर अकेला सही वञूं पर, कीअं मनायूं मौजूं तन्हा। सूर अकेला सही वञूं पर, कीअं मनायूं मौजूं तन्हा। निंड दिए थी सुहिणा सपना, जागुत कोरी ना है कल्पना। मलम लॻण सां छुटी वञनि फट, मलम लॻण सां छुटी वञनि फट, कोन मिटनि पर दाग उन्हनि जा। मलम लॻण सां छुटी वञनि फट, कोन मिटनि पर दाग उन्हनि जा। निंड दिए थी सुहिणा सुपना, जागुत कोरी ना है कल्पना। अॼु उन्हीअ हो भाकुर पातो, अॼु उन्हीअ हो भाकुर पातो, हाल पुछी जंहिं जख्म ॾिना हा। अॼु उन्हीअ हो भाकुर पातो, हाल पुछी जंहिं जख्म ॾिना हा। निंड दिए थी सुहिणा सपना, जागुत कोरी ना है कल्पना। भाॼी वठण त निकतुस मांदा, भाॼी वठण त निकतुस मांदा, मोटिस ॿुधंदे सूर जगत जा। भाॼी वठण त निकतुस मांदा, मोटिस ॿुधंदे सूर जगत जा। निंड दिए थी सुहिणा सपना, जागुत कोरी ना है कल्पना। इसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। नींद है देती सुंदर सपना, नींद है देती सुंदर सपना, जगना कोरी नहीं कल्पना। नींद है देती सुंदर सपना, जगना कोरी नहीं कल्पना। घर से निकला बयार हेतु, घर से निकला बयार हेतु, शोले शोले
था हर रास्ता, घर से निकला बयार हेतु, शोले शोले था हर रास्ता, नींद है देती सुंदर सपना, जगना कोरी नहीं कल्पना। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, करते हैं दूजों को सजदा। घर की मुर्गी दाल बराबर, करते हैं दूजों को सजदा। नींद है देती सुंदर सपना, जगना कोरी नहीं कल्पना। दर्द अकेले सहन करें पर, दर्द अकेले सहन करें पर, मौज मनाएं कैसे तन्हा। दर्द अकेले सहन करें पर, मौज मनाएं कैसे तन्हा। नींद है देती सुंदर सपना, जगना कोरी नहीं कल्पना। जख्म छूट जाता मरहम से, जख्म छूट जाता मरहम से, दाग नहीं है मिटता उसका। जख्म छूट जाता मरहम से, दाग नहीं है मिटता उसका। नींद है देती सुंदर सपना, जगना कोरी नहीं कल्पना। आज था उसने गले लगाया, आज था उसने गले लगाया, पहले जिसने जख्म दिया था। आज था उसने गले लगाया, पहले जिसने जख्म दिया था। नींद है देती सुंदर सपना, जगना कोरी नहीं कल्पना। अंतिम है, सब्जी लेने निकला मांदा, सब्जी लेने निकला मांदा, लौटा सुनते दर्द जगत का। सब्जी लेने निकला मांदा, लौटा सुनते दर्द जगत का। नींद है देती सुंदर सपना, जगना कोरी नहीं कल्पना। धन्यवाद। धन्यवाद कन्हैयालाल मोटवानी जी। और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं तेलुगु भाषा के कवि श्री बांदला माधव राव जी को, जो कविता के अलावा जीवनियां जिन्होंने लिखी है, आलोचनात्मक काम किया है, स्तंभकार है, संपादक है और साहित्यिक विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, अनेक पुरस्कार सम्मानों से विभूषित हैं। श्री बांदला माधव राव जी। Thank you, sir. Thank you for inviting this great poetry session. Thank you. Sevareddy sir is there. He is my guru. He is the convener of Telugu Academy Telugu wing. I wish all the poets and eminent personalities. Now I am reading. First of all, I'll read a poem in Telugu and then I'll follow it in English. రాలుతున్న వసంతం. అక్కడి దాకా వెళ్ళాక ఆ శిఖరం చిట్ట చివరన కాలు మీద కాలేసుకు కూర్చొని ఏం ఆలోచిస్తుంటావు? నీ కోసం మిగిలిన క్షణాల గురించా, నీ లోపల ఇంకిపోయిన దుఃఖాల గురించా? చెయ్యి గుండెల్లో పెట్టి చేజారిన ఒక్కో రేఖని వెలికి తీసి లిట్మస్ పరీక్ష చేస్తుంటావా? ఏం తేలుతుంది? తెలుగు వాచకంలో దాచుకున్న విరిగిన పువ్వుల రేకులలో అంటుకుపోయిన మాగిన వాసన తప్ప ఏం తేలుతుంది? ఆకుల మీద నడుస్తూ నడుస్తూ తీరానికి దూరంగా చూపులు సాచినంత మేర పరుచుకున్న నీటి మధ్య ఒంటి కాలి మీద నిలబడి ఏం తపస్సు చేస్తుంటావు? శ్వాసను బంధించడానికి గురించా? శ్వాసిస్తున్న జీవితపు జీర్ణిస్తున్న నీచు వాసనల గురించా? లోపల గాలమేసి వెతికిన అంతుపట్టని రహస్యమేదో ఇంకిపోతున్న దృశ్యమేదో తగులుతుంది తప్ప ఇంకేం గాలిస్తావు? రాలుతున్న వసంతపు అంచులకు వేలాడుతున్న తీగల దుఃఖ పరిమళాల పక్కన నిలబడి దట్టమైన వనాంతర ప్రదేశాలలో ఒంటరిగా ఏమి పరికిస్తుంటావు? కాలుతున్న అడవులలో పేలుతున్న శబ్దాల గురించా, ముక్కలవుతున్న దేహాల గురించా? ఏం చూస్తుంటావు?
మసిబారుతున్న పచ్చదనం, కూలుతున్న వృక్షాల వేర్లకు ఉరిపెట్టుకుంటున్న పోడు జీవితాల్ని తప్ప ఏం పరికిస్తుంటావు? యుగాలుగా పడి ఉన్న అడవులు, సముద్రాలు, కొండలు తమలోకి విస్తరిస్తున్న నిన్ను, నీ సమూహాలని వీలైనప్పుడల్లా నిలువరిస్తూనే ఉన్నాయి. సాగిలపడి వేడుకోవాల్సిన నువ్వు నిరంతరం దాడి చేస్తూనే ఉన్నావు. నిన్ను నువ్వు నిర్మూలించుకునేందుకు వేగిరపడుతున్నావు. కడాన వాటిలో కలిసిపోవడం మినహా నీకేం మిగలదు. Now I am reading in English. The spring that drips down. The spring that drips down. Having reached there on the summit at the top, sitting cross-legged, what do you think about? About the moments you are left with? Or is it about the sorrow dried up inside you? Thrusting your hand into your heart, you take out the petals one by one. Do you carry out a litmus test? What is established? What is established? The petals of the broken flowers. What is seen other than the smell of the burnt flowers? Walking over the waves into the water, far away from the shore, to the extent that the eye can see, standing amidst the water spread all around, what do you meditate on standing on the lake? Is it about stopping your breath? Or about the increasing rotten smell? Or about the increasing rotten smell of the leaves that breath? You can only grasp the mystery or dried up image hidden deep within, nothing else. Standing by the sorrowful fragrance of the creepers hanging down from the edges of the dripping shipping, what do you look at in the thick, dark, lonely forest? What do you look at in the thick, dark, lonely forest? Is it the sounds that burst in the burning forest? Or at the raining, mutilated bodies? What do you look for the other than the wasted leaves that hang themselves to the roots, of trees that has lost the greenness and collapsed? What else remains? The forest, the seas, and the hills that lie for centuries spreading into you and your groups, they stall. Instead of pleading to lay in front of them, you have been rebelling against them, hastening up our own annihilation. In the end, what else remains with you? This poem is translated by Srimati Kalluri Syamala. Next poem, The River and I. Need to talk about a river flowing from me. Need to speak only about the preached brook that inundated me. Need to play the tune of torment about the water course that cannot have caution. About the water course that cannot have caution with my soil. But whose water's cleansing sound reaches the roof of the hillock during the night. Need to wail about the stream flooded with water. Need to wail about the stream flooded with water
flowing from an unknown source that gallops seawards. Without bothering to quench my thirst, water and politics are synonyms. In the battle of words that are beyond shares, one should scream non-stop. One should scream non-stop to halt the revolt that slips without the trace, like the flow under a match. Should talk about the oozing tears, teeming from the eyes becoming orifice due to thrust wounds, which cannot collect when a double handful of water from the sand mounds, floating on the river body, should write a few lines on the river that can never touch the leaves trailing beside its bank. The river is flourishing as usual. I, with no attachment to its water, am merging into the sea along with it. I, with no attachment to its water, am merging into the sea along with it. This poem is translated by Shiva Prasad. Next poem, End of the Play. Poured into ears, the tune that is hanging to the wire. Settled in front of the fireplace, either side of the right, on the steps of harmonium. We continue our journey, dancing ahead. Through the color applied to the face is dripping off. I continue to sing the tune of sadness till the consumed food is digested. On the turn-out screens, I corrected the tunes of the lives that are out of tune. No emotion peeks out on the hardness faces. Through each dishonested tone from the worn-out humming is enveloping the body. The disconnected tunes never get knotted. The life that is molded into poem. Is getting dumb. Awards and titles in the photos presented in due respect fail in humming the song of hunger. The life that is molded into poem is getting dumb. Awards and the titles in the photos presented in due respect fail in humming the song of hunger. Now the place is need not necessarily be the stage. Need not necessarily by the stage, and the burial grounds sings the poems of tomb god, searching for new shawls to cover up the stinking arteries, clueless if it is today or tomorrow, but the good news arrives of the end of the life's final episode. Clues if it is today or tomorrow, but the good news arrives of the end of the life's final episode. This poem is translated by Kamini Krishna. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद बांदला माधव राव जी। और मित्रों, अब हम सत्रांत में पहुंच गए हैं, इस कार्यक्रम के अंतिम पर्याय में पहुंच गए हैं। हमारे साथ हैं उर्दू भाषा के
कवि गजलकार श्री साबिर जी, आप पेशे से दंत चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, कार्यक्रमों में आपके रचनाएं सुनने को, पढ़ने को मिलती रही हैं। डॉक्टर साबिर जी अपनी कविताओं के साथ। जी बहुत शुक्रिया। पहले कुछ 2 गजलें सुनाता हूँ, फिर उसके बाद 2 नज़में भी। जी जी, तो स्वागत है। जी, मतलब पेश है। हाथ में ढाल न शमशीर, हाथ में ढाल न शमशीर, कहाँ तक देखें। हाथ में ढाल न शमशीर, कहाँ तक देखें। जाने किस रुख से चले तीर, कहाँ तक कहाँ तक देखें। देखें, वाह। हमने नादानी में एक ख्वाब अधूरा छोड़ा, हमने नादानी में एक ख्वाब अधूरा छोड़ा। अब ये मुश्किल है कि ताबीर कहाँ तक देखें। वाह, अब ये बहुत मुश्किल है सुंदर। कि ताबीर कहाँ तक देखें। रंग यादों के भी धुंधलाने लगे वक्त के साथ, जी, रंग यादों के भी धुंधलाने लगे वक्त के साथ। थक गई आंख भी तस्वीर कहाँ तक देखें। वाह, रंग यादों के भी धुंधलाने लगे वक्त के साथ। थक गई आंख भी तस्वीर कहाँ तक देखें। अब जहां पहुंचेंगे मंजिल वही होगी अपनी, अब जहां पहुंचेंगे मंजिल वही होगी अपनी। खींच ला ले जाती है जंजीर कहाँ तक देखें। अब जहां पहुंचेंगे मंजिल वही होगी अपनी। खींच ले जाती है जंजीर कहाँ तक देखें। काश दीवार ये ढह जाए कि निकले रास्ता, काश दीवार ये ढह जाए कि निकले रास्ता। हम ये दीवार की तहरीर कहाँ तक देखें। हाथ में ढाल न शमशीर, कहाँ तक देखें। जाने किस रुख से चले तीर, कहाँ तक देखें। दूसरी गजल मुलाहिजा फरमाएं। पहली बार चलाकर बच्चा खुश होता है, पहली बार चलाकर बच्चा खुश होता है। Sir, it's muted, muted. Please unmute it. जी साबिर जी, क्या हुआ? आपकी आवाज नहीं आ रही। आ गया, अभी आ गया एक बार।
जी बोलिए आप। नहीं पहुंच रही आवाज। कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है लगता है। जी बोलिए आप। ये लगता है कि कोई ना ठीक हो सकने वाली तत्काल इस तरह की कोई दिक्कत आ गई है। तो अ, मुझे लगता है कि वक्त जाया न करते हुए हम लोगों ने सावीर जी की एक गजल सुनी पूरी, और बहुत अच्छा पाठ उन्होंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद उनको देना चाहूंगा, शुक्रिया कहना चाहूंगा। और हम लोग कार्यक्रम के अंत में चाहेंगे कि यदि हमारे अध्यक्ष के शिवा रेड्डी जी कुछ बोलना चाहे, दो शब्द, तो उनका स्वागत है। Sir, would you like to speak something at the end of the session? Please say something. Sir, you have to unmute first. Sir, you have to unmute first. Yeah. Devesh sir, they have read wonderful poems, and there is no necessity for speaking 2 or 3 minutes. We must thank them for participating and enlightening this program. I must be thankful to you, Sahitya Academy, and the poets who participated here. Thank you. There is no necessity to speak more. Okay. Thank you, sir. Poetry Thank is you. enough. That speaks a lot. Thank you, sir. Thank you. See you in the शिवा next. रेड्डी साहब ने सही बात कही। कविता नहीं, कविता पर क्या बोलना, कविता खुद बोलती है। Yeah. पोएट्री स्पीक। तो मैं आज के सभी प्रतिभागियों का साहित्य अकादमी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद कहना चाहूंगा कि हमारे आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया, और एक थोड़ी बहुत तकनीकी दिक्कतों के अलावा लेकिन एक बहुत ही अच्छा सत्र कविता का हम लोग प्रस्तुत कर पाए विश्व कविता दिवस के अवसर पर। हमारे दो कवि भागीदारी नहीं कर पाए, दो भाषाओं के, एक बोडो भाषा के और एक तमिल भाषा के, लेकिन फिर भी पूरे दिन के 3 सत्रों में हमने 22 भाषाओं के 24 कवियों को सुना, 24 या 25 कवियों को सुना, और ये एक बहुत ही अच्छा दिन गुजरा कविता के साथ। मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को भी यह कार्यक्रम पसंद आएगा, और सबसे अनुरोध होगा कि यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आपका कोई सुझाव है तो वह भी आप बेहिचक हमें भेजें। हमारे दूसरे भी बहुत से कार्यक्रम YouTube चैनल पर प्रसारित होते रहते हैं, जिनमें भी जिस भाषा के कार्यक्रम में आपकी रुचि हो उसको भी अवश्य देखें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं।
बहुत बहुत